इस टॉपिक का क्या नाम? जी बच्चा, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक का क्या नाम है? बेटा, ये टॉपिक टुडे वी स्टार्टेड टॉपिक आफ्टर सर्कल्स, इट्स अ स्केल ड्राइंग। ठीक है। सिमिलैरिटी, ये छोटे छोटे एक दो तीन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि आज और इंशाल्लाह कल की क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड करें कि ये इनको समझना बहुत आसान है। ये कहता है स्केल ड्राइंग, हमने ये पहले पढ़ा। इसका मतलब है कि ड्रॉ एंड इंटरप्रेट स्केल ड्राइंग्स एंड यूज एंड इंटरप्रेट थ्री फिगर बेरिंग। अब ये कह रहा है कि इसका मकसद क्या है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर यू कैन सी दैट यू हैव टू यूज अ रूलर। आपको एक रूलर इस्तेमाल करना होगा, आपने बेरिंग बताना होगा। ये क्या चीज़ें अभी सिखाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जो लेट कमर्स हैं बेटा, वी आई एक्सप्लेन्ड स्केल ड्राइंग इज व्हाट इट इज ड्राइंग्स विच आर मेड यूजिंग अ स्पेसिफिक scale, like for example, there is a triangle, and in front of the triangle you can see that AB is 10 centimeter, it is 8 centimeter, and this is 14 centimeter. And there is a scale written here that 1 centimeter is 10 kilometers. It represents in reality. ठीक है. So the examiner is asking you calculate actual distance of the line AB. So I wrote, okay, 10 centimeter is there, AB is the 10 centimeter. So I don't know about x kilometers, but I have the scale available that 1 centimeter is equals to 10. तो मैंने लिख दिया 1 is equals to 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 100 किलोमीटर. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे वर्किंग नहीं भी करते, and that is also correct. Okay, you can skip working for that, but I will recommend do working ताकि क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत ना निकले. ठीक है. They will say that measure distance of AB line when, and tell the actual distance of AB when scale is, and the scale is for example 1 centimeter, it represents 800 meters. ठीक है. For example, this is a scale. So let me draw a line. मैंने एक रैंडम लाइन आपके सामने लगा दी है. What you will do, आप यहाँ पे रूलर रखेंगे और रूलर से आपने मेजरिंग करनी होगी. मैं यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ. यमुना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? Yes, This is sir. A and that is B. So what you will do, you will place your ruler like that. आप रूलर रखेंगे बिल्कुल जीरो जो है बिल्कुल लाइन के बिल्कुल कॉर्नर पे आप रखें. और आप देखें यहाँ पे कितना आ रहा है. मेरे पास आ रहा है बेटा 14.9. कितना आ रहा है बेटा? I can see it's 14.9. 14.9. This is 14.9. So what I'm going to do is I'm going to write here that AB is equals to 14.9 centimeter map on map. In reality कितना होगा यमुना? Reality में ये होगा 14.9 times 800 meters. So can you please multiply and tell me what is the answer? 14.9 times 800 is 11920. 11 920 920 meters. meters. Examiner can ask you to convert this distance into the, for example, kilometers. So you know that 1 kilometer it has 1000 meters. So you have to divide by 1000. So it would be 11.92 kilometers. Understood everybody or not? सर Agree? Sir, जी बेटा. सर ये हमारी मर्जी है कि हम लाइन कितनी भी सेंटीमीटर की बनाएं. बेटा वो लाइन पेपर में लगी होगी, ये लाइन गिवन होती है पेपर में. ओके. ये लाइन पेपर में गिवन होती है, आपने रूलर के जरिए सिर्फ और सिर्फ मेजर करना होता है. ठीक है. sir, I have a doubt. या यस. प्लीज. Sir, can we write this 11.92 as 12 kilometers? No, 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 no. We do not round off unless and until examiner said so. Yes, sir. If the question has something in the written in the end that give your answer to the nearest kilometer, so then you can do that. Okay. Otherwise, not. Yes, sir. Proceeding. Then there is a small little topic along with that. It's a bearings. What is bearing? But a bearing is very easy to understand. Just you have to understand the concept of looking towards each other. Ramin, what is bearing? Bearing is three digit angle, three-digit angle from north. That's the fact, and it's always same. Three-digit angle from north. So beta, all of you should be familiar with this north-south thingy. Agree or not? Okay. So now Yamna, ऊपर क्या होता है बेटा सबसे? सर नॉर्थ होता है. Okay. फिर नीचे?
साउथ। ओके, राइट साइड पे? सर इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। आई गेस वेस्ट होता है या एनीवन ईस्ट होता एल्स? है। Sir, left to the north will be east and right to the Sir, north will east. be west. That is east and this is west. Ramin, is this correct? जी सर। Asfahan? Asfahan, beta? So we know that it's always 90 degrees between them because total angle is 360. ठीक है उमर? 90 degree, 90 Yes, degree, sir. 90 degree. Now what is bearing? Bearing है क्या? Bearing का मतलब है look at someone from but always from north. Okay. So bearing is looking at someone but always from north, but always start from north and move clockwise only. ठीक है तैमूर, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज घूमने की इजाजत है, अदरवाइज नॉट. अंडरस्टूड? Now, for example, let me give you a practical example here. Please pay attention, everybody. For example, this is person A. Rom, are you in the class? B. And this is C. Now you can see one thing, everybody, that there are three persons standing from each other like that. Now you can see one thing that Ramin, part A can be measure bearing of B from A. That is the sentence in maths. So Yamna, what is this in English? आपने you सर have to ए just के write ऊपर like नॉट that. बनेगी ना? हाँ, अब आपने क्या लिखना है इंग्लिश में? ये मैथ्स का सेंटेंस है, आपने इंग्लिश में लिखना है look at B from A. That's the fact. असफहान याद रहेगा, मुईद याद रहेगा बेटा? Yes, sir. Look at B from A. तो अब आपने करना ये है step 1. Draw north on A. आप A पे नॉर्थ लगाएंगे तो असफहान दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन. एग्री मेरा बेटा? जी सर. जी Okay, I want to look at B. I want to look at B. So this is the angle you need to calculate. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Understood, everybody? Yes, sir. Now, how to Yes, calculate this angle? How to calculate this angle? Let me zoom in. I want to calculate here. So Yamna, you can see one thing. यस You can see one thing सर 90 that का एंगल बन। I can draw a plus here. Agree? I know यस सर। that this is 90. Agree? And 90 plus something is this angle. Agree? So यस you सर। will be placing your protector over there ताकि आप एंगल कैलकुलेट करो. मैं रूलर से करके सिखा रहा हूँ पहले, ठीक है? सो आपने थोड़ा सा रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ, देखता हूँ कितना कम होता है. It's 159. So 180 minus 159 is how much? Asfahan, 21. 21 आता है असफहान? Yes, sir. 21, sir. तो ये Yes, sir. तो this is 21. So Asfahan, this is 90 plus 21. 90 plus 21 is how much? 90 plus 21 is 111. 111. 111। yeah 111 degrees. So that is fine for me. So this is 111. This blue mark is 111 degree. Understood, bacha? Now you can see one thing. That the second part can be calculate bearing of B from calculate the bearing of A from B. So beta from B इंग्लिश में क्या कहेंगे? look at A from B. ठीक है स्वान? अब नॉर्थ लगेगी B पे. एग्री है स्वान? Yes, sir.
Okay, Asfahan, look at B from A. So it's always clockwise. So this is the angle you're talking about. Agree? क्योंकि A is on this line. A किस line पर है? A is on this line. Agree? Now, Asfahan, we studied Yes. this already, that we can get this angle by subtracting it from 180 minus 111. Agree? Co-interior angles. याद आ गया? It would be 69 degree. Agree? So we got the idea that 180 minus 111 is equals to 69. So 360 minus 69 is equals to what? 291. So 291 degree is the bearing of A from B. Understood, everybody? Yes, sir. Yes, sir. सर ये Sir? 90 प्लस 21 कैसे आया? क्या चीज? 90 प्लस 21। ये तो हमें पता है ना कि प्लस पे, तो ये तो आपको आइडिया है ना कि अगर यहाँ पे प्लस बनाने तो ये 90 आएगा। तो ये छोटा पीस आप इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर रख के निकाल लेना ना। मैंने रूलर रख के निकाला है कि 21 आता है, तो 90 प्लस 21 करूंगा तो ये आएगा ना। गॉट इट, उमर? सर यहाँ पे ये जो लाइक 21 लिखा हुआ है ना, तो उसकी ऑपोजिट साइड पे हम लोग यूं कर सकते हैं जो Z बना होता है। ऑपोजिट साइड पे कहाँ पे? 21? सर जैसे यहाँ पे A पार्ट जो जहाँ पे A है वहाँ पे 21 लिखा है ना, जी तो जी, B के ऊपर भी 21 बन सकता है अगर हम देखें तो। बिल्कुल 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 बन सकता है बेटा, लेकिन वही बात है कि 90 माइनस 21 करें तो तब भी 69 आता है। एग्री? यस। देखे ना, आपने ये बात अच्छी की है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। रामीन, अच्छा पॉइंट बताया यमुना ने। यमुना कह रही है कि सर यहाँ पे भी प्लस बना लें। ठीक है जी सर। रामीन, मेरी आवाज आ रही? तो वो कह रही है कि सर वहां पे Z जब 21 है तो यहाँ पे भी 21 आएगा, तो 90 में से 21 निकालो तब भी ये 69 आता है ना। जी सर। ये तभी आता है बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेलल लाइंस दे आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो हमने ये थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यमुना, सो दिस इज गुड थिंग। ओके, जी सर। what if the question is in the form of sentence? So सर मैं please इस pay बात को attention नहीं everybody. समझा, किस बात पे ये बेटा? कौन सा थ्योरम हमने पढ़ा? बेटा ये को इंटीरियर एंगल हमने कल पढ़े थे ना, आपको याद हो कि को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेलल लाइंस दिस प्लस दिस इक्वल्स 180। एग्री? सर कौन से? हाँ दिस इज को, ये पढ़ा था ना हमने ना कि दैट a प्लस ओ b हाँ इज हाँ इक्वल टू 180। तो हमने 111 खुद मेजर किया था, तो ये हमने 180 से माइनस करके निकाल लिया। ठीक है, ठीक है सर। इसीलिए देखो पार्ट 1 में यू विल सी द वर्ड मेजर एंड द सेकंड पार्ट में यू विल सी द वर्ड कैलकुलेट। ओके, अच्छा like for example everybody they say that question is that bearing of x from y is 69069. Find the bearing of y from x. बेटा ये कैसे करते हैं क्वेश्चन को? अब जरा थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, दिस इज मैथ क्वेश्चन, सो लेट्स मेक इट। दे से दैट बेयरिंग ऑफ x फ्रॉम y, सो इट मींस दैट इन मैथ्स हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं अरोम, दैट लुक एट x फ्रॉम y is 69 degrees. Any problem, Arun? No sir. So look at x from y is Sir, 69. So let's say this is y. जी मेरा sir, बेटा, जी sir, बेटा। how will you say 69? Won't it be 069, sir? Because we should say bearings in 3 Beta, digits. this is fine. This is fine. Actually, I'm explaining this in a very conventional method. Okay, Ah, okay, sir. got it. I'm just explaining this in order to get you the idea because I wrote 069 already above. Agree? Can you see that? Ah, yes, sir. They say that look at x from y is 69. So what I can do is that I can just simply draw a rough diagram here. That look at x from y. Look at x from y is 69. So this is something, this representation. Understood, Simon? Understood? जी सर, जी सर। This is something, this explanation. Now they say that find the bearing of y from x. So what we'll do that we will just draw a north here and we need to find out this angle. So first of all, we need this angle, and this angle is what? 180 minus 69.
So 180 minus 69 is 111. So this would be bearing of y from x would be 360 minus 111. So 360 minus 111 is how much? 360 minus 111 is 249. 249 degrees. That's how we can calculate the bearings. ठीक है, आगे वर्कशीट्स करवाऊंगा तो उसमें आइडिया हो जाएगा। जी मेरा बेटा रामीन। रामीन कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं सर। ओके दैट्स गुड। ज़रा एक मिनट सब्र कीजिएगा कि मैं ज़रा ये यहाँ पे वर्कशीट ज़रा ओपन करता हूँ बेरिंग के ऊपर। बेटा मैंने कल आपके ग्रुप में आई हैव सेंट अ लिंक फॉर द वर्कशीट्स, तो वो मैं उसको रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। जो जो नई नई वर्कशीट्स मैं बनाता रहता हूँ तो मैं वहाँ पे भेजता रहता हूँ। तो आई होप आप लोगों को आइडिया है कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करना है। एग्री? यस और नो? यस सर। आइडिया है बेटा आप लोगों को? बेटा आप लोगों के साथ मैंने कल लिंक शेयर किया था, आप लोगों ने इस लिंक के साथ क्या किया? शायद आइडिया नहीं होगा सर। आपने तो जी वो भेजा था वर्कशीट। जी बेटा, नहीं मैंने कल वो लिंक भी भिजवा दिया था ना आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आसानी हो वहाँ से वर्कशीट्स निकालने में। मैंने तो नहीं देखा। Sir, can you please resend that link, sir? Please. बेटा इट इज सेंट इन द ग्रुप ऑलरेडी मेरा बच्चा। सर मुझे तो ग्रुप Okay. में नजर नहीं आ रहा। बेटा कल मैंने भिजवाया था आप लोगों को, ज़रा ग्रुप में देख लें। आप में से किसी ने मांगा था तो मैंने उसको ग्रुप में भिजवा दिया था। अच्छा सर सर आपकी वो तबीयत टॉपिकल। हाँ जी, चलें जी ज़रा देखते जाएं। ये बेरिंग के कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस वर्कशीट में मैंने कंपाइल किए थे। इंपोर्ट टू करंट डॉक्यूमेंट। ऑलराइट, सो ज़रा प्लीज़ देखते जाएं कि जो कुछ क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं बेरिंग के, सिर्फ बेरिंग के क्वेश्चंस करेंगे, बाकी हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। सो लेट्स डू दैट। हम लोग साथ ही इसको ख़त्म कर लेते हैं। क्वेश्चन 26 बेरिंग के ऊपर है, ठीक है। They say that in the diagram the bearing of B from A is 170. It means that look at B from A is 170. I can see that. So Simon, can you see that it's 170? So what if I zoom in here and I write down 10 here? Any problem? Any problem that why I wrote 10 here? why No, sir? sir. Because we got the idea that these some co-interior angles of these parallel line, it should be equals to 180. So that is 170. So this little part Oh, would be 10. Agree? अच्छा जी जी And जी। this is 60. So can I say that Arom that this is 120 degree? Yes sir. Okay. Now they say that the bearing of C from B is X degree. The bearing of C from B, it means that look at C from B. So look at C from B. So you can see one thing that I have to pick a shader here. Look at C from B. So look at C from B. So you can see that look at C from B. So that is the thingy I need to find out. Understood, Arom beta? Yes or no? Yes sir. Okay, now Arom, we know that angle at a point is how much? 360. Can I get this angle Y, for instance? Sir, angle Y is 70 degrees, sir. So we have to find that angle Y is equals to 180, oh sorry, 360 360, sir. minus 120 minus 170. Angle Y is equals to 360 minus 290. So angle Y is 70 degree. Any problem, anyone? Now they say that given that, now what's the condition here? Let's see. Given that ABC is an isosceles triangle, ABC is an isosceles triangle, okay. Find the three possible values of X. Okay, so let me draw the triangle three ways. Okay. Arom, can you hear me, beta? Yes sir. I tried to draw the triangles three ways. Any problem?
So in the first scenario, if these two, this length is 70, by the way, these two lengths are same. In the second scenario, these two lengths are same. And in the third scenario, these two lengths are same, because they say that this is isosceles triangle, but they never cleared it that which two sides are equal. Agree or wrong? So 180 minus 70 would be 110. 110 divided by 2 would be 55. 55 each. Agree or not? Yes or no? Yes, sir. In the second scenario, this opposite side is 70, so this side will also be 70. So 70 plus 70 is 140. So this missing side would be 40 degree. Agree? Yes, sir. In the third scenario, this side is facing 70, so this side will face 70. So this angle would be 40 degree. 40. Agree? Yes, sir. Now you can see one thing, that the value of x will depend on this little angle, and that angle here is La Luna. It can be 55, it can be 55, it can be 40, and it can be 70. Agree or not? Yes, So sir. x1 would be 360 minus 10 minus 55 case 1. X2 would be 360 minus 10 minus 40 case 2, and 360 minus 10 minus 70 third value of x. So 360 minus 65 is 295 x1. 360 minus 50 would be 310 x2. 360 minus 80 would be 280. This is x3. I hope I'm clear. So these are the three values you can get at x. फिर ये And कैसे it किया? was बेटा ये कैसे किया का क्या मतलब आपने देखा, ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन दैट द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, ठीक है, उसने नहीं बताया कि दीज टू आर इक्वल और दीज टू आर इक्वल। एग्री कि ये दोनों इक्वल हैं या ये दोनों इक्वल हैं। एग्री, या ये और ये इक्वल है, एग्जामिनर ने नहीं बताया। एग्री? यस सर। तो मैंने ट्राइंगल्स को 3 दफा ड्रॉ किया, तीनों जगह पे मैंने 70 70 लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? पहले केस में कहा कि ये दो बराबर हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एग्री? सो 180 माइनस 70 इज 110, तो 110 को 2 पे डिवाइड करो तो 55 55 आ जाता है। एग्री? देन इन द सेकंड केस मैंने कहा बेटा कि ये और ये बराबर है, तो जब इसके सामने 70 है तो इसके सामने भी 70 होगा उमर। तो 70 प्लस 70 इज 140, 180 माइनस 140 इज 40। एग्री? थर्ड केस में मैंने कहा कि ओके ये दोनों बराबर हैं, तो जब इसके सामने 70 है, ठीक है, तो इसके सामने भी 70 होगा, तो ये वाला 40 आएगा। अब अंडरस्टूड? सो यस x की सर। वैल्यू कहां से Yes, sir. निकलेगी? x की वैल्यू 360 में से निकलेगी। 360 माइनस दिस एंगल एंड 10। तो देखो 360 में से 10 को मस्ट निकालना है, लेकिन ये एंगल कभी 55 आ रहा है, कभी 40 आ रहा है, कभी 70 आ रहा है, तो इसीलिए 3 बेरिंग्स आर चेंज्ड हियर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? Yes, sir. Understood, sir. दिस सी रही। ओके, लेट्स डू दैट फर्स्ट। नहीं, ये नहीं करते पहले, ये बेरिंग का क्वेश्चन नहीं है, वर्कशीट है ना। ओके, दे से दैट 4 oil rigs are positioned at the vertices of the rectangle. The bearing of B from A is 40 degrees. So, Saim, can I say that this would be 140? सर Yes or no? जी सर, बिल्कुल। Okay. Okay. The bearing of B is 40. Find the bearing of A from B means look at A. Look at A from सर B. ये बेरिंग Look राइट at से होता है ना हमेशा? हमेशा clockwise, right नहीं बोलते, clockwise, ठीक है। अच्छा, clockwise। Look at A from B. सर तो So आपने look at A. 140 क्यों किया है लेफ्ट से? बेटा ये तो एंटी मैंने क्लॉक। एंगल निकाल लिया है, ये तो हम लोगों को अब इतना तो एंगल पढ़ पढ़ के हम थक गए हैं कि सम को इंटीरियर एंगल 180 के बराबर आता है, तो ये 40 लिखा था इसलिए जल्दी से 140 लिख दिया इधर। ठीक है, ठीक है। यस ओके, फाइंड लुक एट ए फ्रॉम बी। सो आप बी पे खड़े हो जाओ, अब ए को देखना है तो क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, इतना एंगल निकालेंगे उमर। ठीक है, so this angle would be 360 minus 140, which is Aleen 220 degree. I hope I'm clear. Agree? Yes, sir. Okay, now they say that look at C from B. Look at C from B. So look at C from B. So first of all, I need to calculate, Aleen, this little angle. I name this angle as X.
So this lower is 90 and this is, so the x is equals to 360 minus 140 minus 90. So x is equals to 360, 140 plus 90 होता है बेटा 230. Am I right? So x is equals to 130. So Aline, this angle is 130. So if I draw a line north here, so उमर, तो अगर ये 130 है उमर, Yes, तो क्या sir. ये 50 होगा ये छोटा पीस? कौन सा? ये 180 minus. हाँ सही. 180 minus 130 is 50. So they said that look at C from B. Look at C from B. So look at C from B. So this is the angle they are talking about. So it's 130 degree. तो 130 degree answer हो गया हमारा. Now, Asfahan, they are saying look at C from D. Look at C from D. तो D पे बेटा खड़ा होना है. Agree? Agree Asfahan? Yes, sir. और बेटा डी के ऊपर खड़े हो गए, यहाँ पे नॉर्थ लगा दिया. अब आपने क्या करना है? इट सेज दैट लुक एट सी फ्रॉम डी. तो डी के ऊपर आप खड़े हो गए, अब आपने सी को देखना है. तो यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल. अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड अस्फहान और नॉट? Yes, sir. ओके मेरा बेटा एक चीज अंडरस्टैंड करो. आपको मेरा बेटा एक चीज नजर आ रही है कि ये 50 प्लस 90 कितना होगा? 50 प्लस 140, 90 इज sir. हाउ मच? जी 140. 140. 140. तो क्या ये एंगल कितना आएगा? 40 डिग्रीज. एग्री और नॉट? और अस्फहान Yes, sir. आपको ये पता है कि ये एंगल भी 40 है, तो ये एंगल भी 40 आएगा. क्यों? क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं. एग्री? सर ये डी Yes, वाला sir. फिर से बता. बेटा एंगल डी देखो, कहता है लुक एट सी फ्रॉम डी. तो डी पे नॉर्थ लगाया मैंने. एग्री? तो सी को देखना था, तो Yes, sir. ये सी इस लाइन पर है. ठीक है उमर? तो ये एंगल कैलकुलेट करना था. हमारे पता था कि सामने 50 और 90 लिखा है, तो 50 प्लस 90 इज 140. तो 180 में से 140 को माइनस करो तब भी 40 आता है. और अगर आप इसको देख लो तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं. ठीक है रामीन? जी सर. समझ आ रही है बच्चा? जी सर आ रही है. ओके दे से दैट इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर. अच्छा ये फिलहाल के लिए ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे. ये क्वेश्चन करते हैं. इन द डायग्राम द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल. इक्विलैटरल का मतलब है ऑल एंगल्स आर इक्वल. इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन. तो 60 60 60 होते हैं. ठीक है अस्फहान? कहता है अस्फहान सी इज ड्यू ईस्ट ऑफ बी. तो बेटा ये कंफ्यूज नहीं होना. अस्फहान नॉर्थ ऊपर, Yes, sir. नीचे साउथ, राइट पे ईस्ट और लेफ्ट पे वेस्ट. एग्री? Yes, sir. कहता है सी इज ड्यू ईस्ट ऑफ बी. सी इज ड्यू, East of B. तो कहता है सी इज ड्यू ईस्ट ऑफ बी. तो बी का ईस्ट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नॉर्थ अगर आप लगा दो. एग्री? तो यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए. कितना बनना चाहिए अस्फहान? 90 degree. 90 डिग्री. तो बेटा 90 माइनस 60 इज हाउ मच रामीन? 30. 30. वेरी गुड. यस Yes, सर. sir. सर मुझे ये वाली बात तो समझ अस्फहान जी और बेटा. ड्यू ऑफ बी, मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई. सी इज ड्यू ईस्ट ऑफ बी वाली. तो बेटा ईस्ट ऑफ बी क्या होगा? बी का ईस्ट ये साइड नहीं है, जी. तो सी इज ड्यू ईस्ट ऑफ बी. तो बी के ईस्ट पर है. एग्री? अच्छा. अंडरस्टूड? जी. देखिए वो कह रहा है सी इज ड्यू ईस्ट ऑफ बी. इसका मतलब है कि सी, अब नॉर्मल वर्ड्स में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, ये मैथ्स की लैंग्वेज है, कि सी इज एट ईस्ट ऑफ बी. एनी प्रॉब्लम? नहीं सर मुझे समझ आ गई. ओके गुड जॉब. अच्छा जी, तो ये हो गया बेटा. टोटल 90 होता है, तो ये 60 हो गया माइनस. तो 90 माइनस 60 इज 30. सो कहता है फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. सो लुक एट बी. आरोम look at B. Laluna, look at B from A. So look at B from A. So this is the angle they are finding. Agree or not? So I cannot measure it, but I have this 30 over here. So Laluna, can I say that this is 30? So this is 150 degree. Yes sir. Yes or no? Yes sir. So I need to calculate this red part. So I have to eliminate this 50 degree. Agree or not? 150 degree, sorry. So 360 is total. 360 minus 150 is 210. Agree or not?
So the bearing of B from A is 210. It is what? It is what, beta? 210. 210. Okay, Laluna, this total is 210. If I subtract this 60, will I get this part or not? G. So 210 minus 60 is 150 or not? Yes. So this part, little part, will also be 150. They say that in the next part, find the bearing of A from C. Find the bearing of A from C. Bearing of A from C. Agree? So bearing of A from C. So look at A. Look at A from C. So stand at C. Draw north. Draw north. North लगा दिया आपने अस्फहान. ठीक है मेरा बेटा मोहित. नॉर्थ लगा दिया. ठीक है बच्चा. अब वो कहता है लुक एट ए फ्रॉम सी. तो ए को हिट करो. तो क्लॉकवाइज इतना हिट करना है. एग्री? सो यू कैन सी वन थिंग. अस्फहान ऊपर 150 लिखा है, तो क्या ये छोटा पीस 30 होगा? Yes, So sir. this angle would be 360 minus 30. 360 में से 30 माइनस करो तो कितना आता है बेटा? 330. It is what? 330 और पहले का आंसर है 210. Understood everybody or not? Understood, sir. Okay, they Yes, say sir. that a boat sails around a course represented by the triangle ABC. It started 11:38 and finishes at 14:21. How many minutes did it take? Very easy question. आसान है. 14:21 में से आपने माइनस करना है 13:38. I cannot subtract because I know that Yamna that this is minutes area. Agree or not? Because Yes. I cannot subtract 38 minutes from 21 minutes. Agree? So I have to write 13 Yes. hours and 81 minutes and 13 hours and 38 minutes. Any problem? What No, I sir. did here, No मैंने problem. उमर यहाँ से 1 आवर लेकर मैंने यहाँ पे 60 मिनट्स ऐड किए. कोई प्रॉब्लम है? तो ये 7 हो गया. 11 minus 8 is 3 and 7 minus 3 is 4. So it took 43 minutes. Easy? Easy everybody or not? Yes, sir. Easy, sir. Yes, sir. Sir, but I They have say a doubt. that, yeah, please go ahead. How is that related to bearings, sir? Actually, beta, remember one thing, in papers, examiner do test composite topics together, okay? Mm. So they use the bearing concept, and in the part C, they tested your time technique, okay? Okay. Yes, Okay. sir. Yes, got So it, sir. as a teachers, whenever we make worksheets now, so we are always in a hurry to compile the questions, okay? So we give the command to some softwares that I need bearing questions. So if there is a part C related to any other topic, so that is also the part of the worksheet. Okay, sir. Got it. Thank you. My pleasure. All right. Proceeding. Let's do that. A ship traveled from P to Q. It unloaded its cargo at Q and then returned to P. The bearing of Q from P is 075. Okay, 1 mark question. So it means that look at Q from P is 75 degrees. So let's say if this is P and that is Q, so this angle is 75 degrees because it is written here. Find the bearing of P from Q. So I have to draw north and I have to calculate this angle. So we know that 180 minus 75 is 105. Am I right, Ramin? Yes, So sir. then 360 minus 105 is the answer. So 360 minus 105 is 255. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. They say that the ship left C. Again, we got time with the bearing. The ship left P at 21:40. It's 24-hour format and returned to P at 5:33 the following day. Okay. Find the length of the time in hours and minutes between leaving to P. We know that 21:40 day will end at 24. Agree or not? Yes or no? Yes or no? And then 5 hours and 33 minutes extra. Mujgan, do you understand? So what I'm going to do is from 24 hours, I have to eliminate 21 hours and 21 hours and 40 minutes. So we know that this time is how much? It is approximately how much hours? Everybody, 2 hours, 20 minutes. Am I right? Yes, sir.
So this is 2 hours and 20 minutes, Arum, and this is 5 hours and 33 minutes. So then I have to add 5 hours and 33 minutes with that. So total would be 7 hours and 53 minutes. Am I right, bacha? Ke nahi? Yes, Oh, sir. Ramin, you can see one thing that I use 24-hour format because यहाँ पे 2140 लिखा था, ठीक है? जी सर। और रामीन यहाँ पे कभी कभी ये ट्रिकी भी होता है, अगर ये 2140 की जगह पे इफ इट वाज 1240 and if there is no AM PM, so you have to assume always that this is 24-hour format, okay? ओके सर। ठीक है, be careful with this thingy. Okay, they say that one approximate solution of sin x, अच्छा ये तो आगे मैं trigonometry में पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को, ये पढ़ें जी। Question 18. The diagram shows that the triangle is equilateral. We just discussed equilateral triangle क्या होता है स्वान, सारे एंगल कितने कितने के होते हैं? 60 60 असफान, वेरी गुड, 60 60 60। असफान 6 कहता है द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 75, मार्क्ड है, नजर आ रहा है? असफान, इसका क्या मतलब है बेटा? फाइंड द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। कौन हाँ इसका क्या मतलब है बेटा? पार्ट ए, ए फाइंड द से बेयरिंग देख ऑफ के सी फ्रॉम, सी इंग्लिश में बताओ। ए से सी को देखने से लुक एट ए फ्रॉम सी ना 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 ना, लुक एट सी ए फ्रॉम फ्रॉम सी ए। बेटा फिर उल्टा बोल रहे हैं, लुक एट सी फ्रॉम ए, ठीक है? लुक एट सी फ्रॉम ए। सो बेटा आपको पता लग गया है कि एंगल कितना है, ये एंगल है कि नहीं असफान? तो 75 plus 60 is how much? 135 115 135 135। अब आसमान जरा ये ट्राई करो दोबारा बेटा। फाइंड द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, इसका क्या मतलब है इंग्लिश में बताना। look at B from C या C Very from B I don't know लुक एट सी फ्रॉम, बेटा फ्रॉम ऊपर लिखा हुआ है ना, फ्रॉम बी सेम लिखना है, ये सी फ्रॉम बी सेम लिखना है, खाली लुक एट का वर्ड लगाना है, ठीक है? okay sir लुक एट सी फ्रॉम बी। okay अब बी पे नॉर्थ लगाएंगे, एग्री? एग्री? yes sir अच्छा, नाउ लुक एट yes sir सी फ्रॉम बी, लुक एट सी फ्रॉम बी। तो आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है, एग्री और नॉट? yes sir ओके असफान, ये 75 है तो क्या ये 105 होगा? क्योंकि टोटल 180 होता है ना, 75 yes प्लस sir 105 180 आना चाहिए। तो yes टोटल एंगल कितना होता है एक पॉइंट पे? 360 360 माइनस minus 60, 105. 360 माइनस 60 माइनस 105, ठीक है? 715 ठीक है बेटा। सो yes 360 sir आलीन 1 minus 165 and the answer is 195. Thank you हुरिया। हुरिया, आई होप यू आर नॉट कैलकुलेटिंग इन कैलकुलेटर। अच्छा, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं करा करो, ये P1 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? Yes. गुड गुड गुड। मेंटल मैथ्स करो, मेंटल मैथ्स आपकी शार्प होनी चाहिए। खुशी, कैन यू हियर मी? खुशी, कैन यू हियर मी? सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। खुशी रीड करें क्वेश्चन बेटा। The scale drawing shows 3 towns A, B, and C. The scale of the drawing is 1 centimeter to 25 kilometer. Measure the bearing of A from C. इंग्लिश में क्या मतलब है इसका? लुक एट, Look at C from A. दोबारा पढ़ो। A from C? यस, लुक एट ए फ्रॉम सी। आप ये ए और सी को फ्रॉम चेंज ना करो, खाली बेरिंग की जगह पे लुक एट का वर्ड लगा दिया करो, ठीक है? Actually, अच्छा, नॉर्थ कहाँ पे लगाएं, सी पे के ए पे? A पे। जरा गौर करो बेटा, लुक एट ए फ्रॉम सी। Look. नॉर्थ हमेशा अच्छा, फ्रॉम के बाद वाले लेटर पे लगती है, sorry. ठीक है? Yes, sir. तो ये लुक एट ए फ्रॉम सी, सो दिस एंगल मेजर करना है ना, जी। तो प्रोटेक्टर विल वर्क, एग्री? Yes, तो sir. थोड़ा जूम इन करके यहाँ पे प्लस बना लेते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, Yes, sir. आपको पता है कि ये टोटल 90 होगा, कितना होगा? 90. तो 90 में से हम इस पीस को माइनस करेंगे, ठीक है? ये छोटे वाले पीस को माइनस कर देंगे, ठीक है? ठीक। प्लस सर इसको तो प्रोटेक्टर से निकालेंगे ना? आप लोगों ने प्रोटेक्टर से निकालना है, मेरे पास यहाँ पे प्रोटेक्टर नहीं होता ना आईपैड पे। जी। ये आ गया बेटा मेरे पास 23, कितना आ रहा है? 23.
तो 90 माइनस 23 करना है। 90 माइनस 23 कितना आता है? आप लोग प्रोटेक्टर पे करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। जी रामीन बेटा, आप जी लोगों ने प्रोटेक्टर जो है ना, आप लोगों ने प्रोटेक्टर कुछ इस तरह रखना है, जरा देखो। ये प्रोटेक्टर का 90 का पोर्शन होता है। तो आप लोगों ने प्रोटेक्टर, यमुना आप यस लोगों सर। ने प्रोटेक्टर जो है ना, यार सबर करो जरा, मैं कोई प्रोटेक्टर की एक सर पिक्चर ये जहाँ डाउनलोड पे करता हूँ। एरो है वहां पे रखना ना। एक मिनट जरा सबर करो जरा, मैं एक प्रोटेक्टर की पिक्चर जरा डाउनलोड कर लूँ। मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ प्रोटेक्टर पिक्चर। या दैट्स गुड, आई गॉट इट। जरा मैं एक पिक्चर डाउनलोड कर लूँ, फिर मैं आईपैड में इसको यूज कर सकूंगा। उप्स, सेव टू फोटोज। जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा want to rotate this. Oops. Like this. तो रामीन नजर आ रहा है बेटा? जी सर। बेटा आपने प्रोटेक्टर देखिए इस लाइन पे रखना है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? जी देखिए सर। ये इसको प्रोटेक्टर, दूसरी तरह नहीं रख सकते? ये प्रोटेक्टर नॉर्थ के का ये ऊपर जो 19 जो देखें नॉर्थ की, आपने प्रोटेक्टर को नॉर्थ को, आपने ये बेरिंग कैलकुलेट करनी है, ब्लू एंगल निकालना है ना, ठीक है यमुना? जी तो सर। आपने प्रोटेक्टर बिल्कुल ऐसे रखना है, ठीक है? जब आपने प्रोटेक्टर रख दिया ओके। तो तब आपने यहाँ से यहाँ तक का एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है मेरा बेटा? तो मेरे यस सर। पास ये एंगल यहाँ पे आ रहा है कुछ 65 एक्यूरेट आया है बिल्कुल, क्योंकि प्रोटेक्टर हमने निकाल लिया ना, ठीक है? जी। समझ आई? यस सर। ठीक है, सो हमारे पास आया है 65। सो दिस इज 65 डिग्री। यार आई वांट टू रिमूव दिस नाउ, हाउ टू, एक मिनट। ओके चलें जी, प्रोटेक्टर साइड पे गया। फाइंड द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। तो बेटा ये 65 आया है, खुशी ये क्लियर हो गया? फाइंड द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, सी फ्रॉम ए। तो ए पे नॉर्थ लगाएंगे खुशी, एग्री? जी सर। बेयरिंग ऑफ सी देखनी है फ्रॉम ए से, तो दिस एंगल, एग्री? तो खुशी अब यस हमें सर। पता है कि ये एंगल निकालना बहुत आसान है, 180 माइनस 65, 180 माइनस 65। 65, तो 180 माइनस 65 इज हाउ मच? 115। तो ये हमारी बेयरिंग तो रेड है, तो 360 माइनस 115, तो 360 माइनस 115 इज 245 डिग्री। Yes sir. Understood? So now use ruler, find the actual distance in kilometer from B to C. From B to C, तो पहले आप actual distance measure करना है, तो ruler रखें। This is बेटा बिल्कुल accurate जाना है। अच्छा तो 9.5 आ रहा है मेरे पास approximately, आपसे 9.5 सेंटीमीटर आ रहा है मेरे पास। So खुशी, it is written 1 centimeter is representing 25 kilometer, तो multiply by 25, calculator not allowed, ठीक है? So be careful how to multiply decimals, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सर 9 पॉइंट, जी बेटा। सर ये बेरिंग कब काम में आता है? बेटा बेरिंग अगर ना होता ना, तो ये जो साइन बोर्ड्स लगते हैं ना मार्केट में, हम्म। ठीक है, तो इनका एक खास एंगल सेट किया जाता है, ठीक है? अच्छा। तो उनके ये अंदर कैसे? इस्तेमाल होता है, और दूसरा आपका उसमें इस्तेमाल होता है जब आप इस्तेमाल करते हैं गूगल मैप, ठीक है? अच्छा। तो वो हमेशा सर आपको नॉर्थ की आपने तरफ डायरेक्ट 25 करता रहता है। जी अच्छा। सर आपने जी 25 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा वहां पे ऊपर स्केल गिवन था, उन्होंने कहा ना एक्चुअल डिस्टेंस निकालो, ये तो अरे मैप के ऊपर क्लॉकवाइज डिस्टेंस है क्यों करते हैं? ना। जी क्लॉकवाइज क्यों करते हैं? देखो बेटा, क्लॉकवाइज अगर नहीं करेंगे तो एक बंदे को गूगल मैप पे कहे, गूगल मैप वाला कहेगा कि आप राइट पे मुड़ो जो सामने से आ रहा होगा, ठीक है? एग्री? और दूसरे बंदे को गूगल मैप वैसे कहेगा कि आप लेफ्ट पे मुड़ो, एग्री?
Yes, sir. देखो जैसे फॉर एग्जांपल ना मैकडॉनल्ड्स इज एट योर राइट, एग्री, बट इफ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड in front of you, so it is on my left side, agree? Yes, sir. So my Google application, it will tell me, it will tell me that you have to look at your left, but your Google application will tell you that you have to look at your right, agree? Yes, sir. This is just because of the application of the bearing, okay? 9.5 को 25 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बेटा क्योंकि स्केल ड्राइंग ऊपर लिखा हुआ था कि 1 सेंटीमीटर 25 किलोमीटर के बराबर होगा, और वो कह रहा है एग्जामिनर कि एक्चुअल डिस्टेंस निकालो। सो 9.5 मींस 95 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 25। सो 95 और क्या नाम है 25 को मल्टीप्लाई कर लें, वो भी इजी है। कटिंग करना चाहते हैं तो तब भी कर लें। ये नीचे आता है 2 और ऊपर आ गया 5, एग्री? 95 टाइम्स 5, तो आप वर्किंग करेंगे 95 टाइम्स 5, 5 5 are 25, 5 9 are 45, 45 plus 2 is 47। oh wait a minute, ये क्या किया मैंने? okay so 25 and 5 9 are 45, 45 plus 2 is 47, तो 475 divided by 2। तो अब डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकता तो मल्टीप्लाई बाय कुछ करते हैं कि ताकि ये हाफ हो जाए, तो डिवाइड ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 475 divided by 2, so 2 2s are 4, so 2 2s are 4, okay, 7 comes down, 2 3s are 6, 1 comes down 5, 2 7s are 14, 1 comes here, point and 0, so that is 237.5 kilometer is the actual distance. Understood everybody or not? Yeah. Yes or no? Better do make sure that if you have the non-calculator booklet of O levels P1, do practice scale drawings and bearings today. Okay? We'll do similarity and symmetry tomorrow because we are lack of time now because the class is almost end. Okay? Okay, sir. यहाँ पे मैं जरा देख लेता हूँ कोई बेरिंग का क्वेश्चन है और कि नहीं। यार नजर आ रहा है? Okay. Look at question number 10. Point S, A, B, and C. The bearing of lighthouse from ship S is 220. So lighthouse को जरा mark करते हैं। The bearing of lighthouse from ship S is 220. Which 4 points A, B, C is D is a possible position of lighthouse? तो देखें बेटा, अगर मैं D को कनेक्ट करता हूँ तो this is not 220. Agree? Yes or no? A को कनेक्ट करता हूँ, this is not 220. D को कनेक्ट करता हूँ, this is not 220. This can be reflex. Agree? So better 220 is what? 220 is greater than 180. Agree? So in my opinion, they say that the bearing of the lighthouse from ship S is 220. In my opinion, the answer is C. What do you say? And then they say that write down the bearing of S from the lighthouse. So if this angle is 220, so they say that the bearing of S from the lighthouse, so this is lighthouse, agree? So we need to find out this one. So what do you think would be that answer? Anyone? कोई बच्चा बता सकता है कि ये आंसर कितना होगा? Anyone? सर माइनस करेंगे 220। नहीं, आप देखें जी जरा यहाँ पे गौर करें। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 होता है, एग्री? यस सर। So that is obvious that this is 40. So this is also 40 alternate angle. Agree? So the bearing would be 040 because bearing is 3 digit. हम 40 नहीं लिख सकते, 3 digit में लिखना होता है हमेशा। Understood? यस सर। चलें जी, आज जरा खूब प्रैक्टिस करें अपने नॉन कैलकुलेटर बुकलेट में। मैं इसके ये क्वेश्चंस और नोट्स जो हैं मैं भिजवाता हूँ आप लोगों को। आप लोग उन्हीं को देख के प्रैक्टिस करें और इस टॉपिक को डन करें। ये इजी टॉपिक है, ठीक है? जी। See you tomorrow इंशाल्लाह। क्लास कल भी होगी इंशाल्लाह अपने टाइम पर, ठीक है? Okay, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।